हेमंत जी आ जाओ। आप आओ। यहाँ पे देखिए। I would like to call रीना आए जरा यहाँ पर आइए ओके अच्छा भाई इस तरह बचा हुआ रीना उधर आके बताइए मनोज आ जाइए क्योंकि हमारी टीम के बगैर हम अकेले इसमें कुछ भी नहीं कर सकते एंड रीना का बहुत योगदान है इस प्रोग्राम में जो भी आज रीना मैम रीना और मनोज की वजह से लास्ट ईयर का भी एडिशन हुआ Behind every successful woman is the backbone and the support of a very loving husband, Director of Asia Pacific Flight Training Academy. And we'd like to invite him to share with us some of your stories and some of the things, what all happens in your home, what all talks are there. Well, thank you. This was a surprise. Nobody told me I was supposed to speak. Anyway, when it was being planned, and Shabi came up with this idea, I thought it was a fantastic idea, but to organize it in a short time frame and get everyone to participate and make it a success, I was having butterflies in my stomach, but the way it happened, and it was fantastic. Now this year, again, till yesterday, at about 2:30 in the night, she was working another project for someone else who had to launch some flights tomorrow or day after from Madhya Pradesh, and ministers are involved and all. I said, how are we going to do this program today? I mean, I have not even seen you do anything at all, and she's got a fantastic team of youngsters here with Laksha and everyone, and there you go. In terms of the program itself, what the speakers before me said, that in India, we have women, we worship women, and we respect them and all that stuff. But what needs to be done in the gap, we all know. And us as men are the ones who need to take the responsibility. Like I said, we have a daughter and a son. And right from the time that we're bringing them up, at home itself, you need to put those ground rules in place. Like for example, when you get up from the table, though our daughter is elder to our son by about 6 years, so the tendency is there that she will do all the work or help out with the brother or whatever. But right from the beginning, we said that in case like you're having dinner and get up and you go out, it's not just that the mom or the sister will clean the plate, it is sometimes me and my son will do it and they go and watch TV. Or we go and make the tea and they watch TV and we serve it to them. Right from beginning, if you make it known to the children that they are both equal, there's nothing, the fact that a lady means she's supposed to do certain tasks and gentlemen are supposed to do something else, that if it's driven in as they grow up, they start respecting and they start teaching everybody equally. So charity begins at home. And when I came to office, I used to run an airport before my current assignment, and it's a beautiful airport. We're ranked #1 in the world. But when I joined the airport, we had less than 8% women working in the entire airport. Now, there is no excuse for this. It's a safe work. Hospitals, majority of them in the nights. So if that's the case, why not at an airport? And when I try to tell my HR, when you do an interview, sometime even for a position which is customer service, if I want 15 resumes, all 15 would be male resumes. So how do you go around selecting a woman if there is not even a resume? So I said, at least 50% of the resumes should be women, and my HR went into a spin. And unfortunately, half of the HR folks were women. Thankfully, I had a little say in the matter, so I insisted on it and I pushed it. And I'm glad to say but not such a great achievement, but in about 7 years' time, we went from 8% to about 24% women. So it is still a long way off. I would like to either great place to work,
they have either 50-50 or actually 51 or 54 is to 45 women. And trust me, all of them are doing much better than the other ones. And the current company, I think we are the highest women pilots in the world. But then again, if you see 12%, is it really good enough? No, not really. Okay, and any country which doesn't tap 50% of its rich resource is never going to be rich. We're going to be always poor, whether it's politics, whether it is workplace or home. Okay, and I think we have enough proof and more that women, if anything, they do a much better job than us guys. We all know that. So maybe it's not so much as tradition or culture. Maybe it is insecurity from men. That, maybe if these guys come, they'll really take over. And I think that's not a bad idea compared to what we've done so far. Probably we need to give the other side a chance, if I can call it the other side. So here also, we now if you think getting customer service is difficult, imagine trying to get pilots and engineers, because it requires a specific degree, specific qualification, and so on and so forth. But pushing. Currently, we are about 34% from about 12% that we started about 4 years back. Unfortunately, among the flight instruction team, we don't have women. We're looking for some women pilots, but that's the way to go. So my point here is that if we want to bring it forward, it's not just the women who's going to make it happen. It's the men who as much has to contribute, if not more. And the results are there for everyone to see, that both business-wise, country-wise, administration, talent-wise, they do very well. And the Delhi, when the 10th and 12th results come, we all know who top, yeah? So let's start the resources, and I'm very glad Chavi took up this initiative, and she's doing it forward, and I'm sure it'll go to great heights. Thanks a lot, Chavi, for the opportunity, and thanks for all the ladies coming. Thank you. Ma'am, please can you come up on stage? Thank you. She's a very and a social activist. Thank you so much for joining us. This is also the time for us to thank our support partners, Altos Enterprise Limited, Asia Pacific Flight Training Academy, K Expressions India, Digitos, Art for Peace Awards, and the Benevolent Effect. The word Swalamban, which means independency, and Ambika, as you all know, means female or the woman. And so we are today celebrating independence of women. And I'm sure many of you are very familiar with this quote, and this is by Malala Yousafzai. I raise my voice not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. We cannot succeed when half of us are held back. And these awards, therefore, are a celebration and a recognition for all those women who have established themselves and have gone out of their way to help others. It endeavors to encompass, honor, and facilitate young, budding, and accomplished women entrepreneurs, and also socialite women in their various tasks that they have done and the various milestones that they have achieved. They've worked with underprivileged women, the girl child, differently abled, and also given them basic education and safety and security. We're going to start our calling everybody on stage. So now this is the time for us to Dr. Jan is the मैम वेट सामने देखिए सारे ओके थैंक यू
like to honor our special guest, Dr. Priyanka Mishra, IPS. She's the Director of Administration, Indra International Awards Center of the Ministry of Culture. May I invite Hemant, Mr. Hemant also to please come. A round of applause. Wait. Ma'am, here. Thank you. Stop it looking at the language. We'd like to know. The most helpful person I have ever met. मैं बहुत कम जानती हूँ लेकिन हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करते हैं और अभी भी बैठे बैठे मुझे बोला है कि अगली बार इस प्रोग्राम को हम और बड़ा करेंगे and we will make sure that we have more women and more time to celebrate women. Thank you so much. And to greet our very own Chavi Hemant. And now to greet our own Chavi Hemant, we have Reena ma'am and Lakshya. She is the founder of Swalambika Foundation and ESB India. She's a motivational speaker. Women who actually are the bones of everything which I do. Like if I cannot function even a single day without either of them. Lovely. So and what's important for all of us to know is that if you want success, there are no timings. We cannot have a 9-to-5 job and expect that we will be successful like permanently. It is like you have to give yourself in it. Like when we fall in love, we just completely give ourselves, and we want to keep on calling the person who we want love at that time for 24 hours. That's the way when we work, we find success very easily. Thank you so much. I would now like to call upon Dr. Priyanka Mishra. She's an IPS and the Director of Administration, Indra Gandhi. नमस्कार, मैं संस्कृति मंत्रालय में काम करती हूँ, इसलिए हिंदी में बोलना प्रेफर करती हूँ। मैं मध्य प्रदेश काडर से भी, सर आपको पता है, मध्य प्रदेश काडर से IPS हूँ और पुलिस की यात्रा में महिलाओं और पुरुषों के बीच में अंतर किस तरह से होता है, उसको किस तरह से जीता जाता है, इसकी जीती जागती एक कहानी हूँ। इसके अलावा जब मैं संस्कृति मंत्रालय में आई हूँ, मैं बहुत कम समय लूँगी आपका। संस्कृति मंत्रालय में जब आई तो मुझे ये पता चला कि महिलाएं सबसे शक्तिशाली होती हैं और ये भी पता चला कि हमारी संस्कृति यही कहती है, तो हमको इनसिक्योर क्यों होना चाहिए और क्यों हमको 365 डेज में क्यों एक दिन मनाना चाहिए। तो मैं ये आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि एक दिन नहीं, हमारे 365 डेज हैं और 365 डेज हम अकेले नहीं, हम सब हैं। तो इट इज़ गोइंग हैंड इन हैंड, साथ साथ चलने की एक यात्रा है, कोई कंपटीशन नहीं है। बिना हस्बैंड के मैं अपनी यहाँ नहीं रह सकती। जैसे आप त्यागी जी ने बात की, मैं उसको यहाँ नहीं लाया। मेरे हस्बैंड कहते तो हम कहते हु आर यू टू ब्रिंग मी हियर, मैं अपने से आ जाऊँगी। सो एक मेंटल लेवल पे एक चीज़ है जो मैं, त्यागी जी माइंड प्लीज मत करिएगा, ये मैंने एक बार एक छोटी सी इंसिडेंट से, आपने हेमंत जी ने बहुत प्यारी बात बोली कि ये यात्रा घर से शुरू होती है। तो मैं छोटी सी
कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करूँगी। मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि तुम जाती हो, बच्चे घर में कभी समय होता नहीं है और बहुत बिजी रहती हो, व्हाई डोंट यू गिव योर टाइम टू योर किड्स और बी अ गुड मदर एंड ऑल दिस। ही इज़ ऑल्सो ए पुलिस ऑफिसर। सो और स्पेशली आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 1 साल से चल रहा है, तो हम लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग और बहुत सारे कामों में लगातार बिजी हैं। तो आई वॉज ऑल्सो रियलाइजिंग दैट आई एम नॉट गिविंग इनफ टाइम टू माई किड्स। तो उसने कहा कि तुमको इतनी लिबर्टी देते तो यू डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा आप लिबर्टी देते नहीं हो। मैं आपसे लेती नहीं हूँ, लिबर्टी मेरी ही है ना। मैं दिस इज माई डिसीजन दैट आई एम शेयरिंग माई टाइम विथ यू एंड दिस इज माई डिसीजन, यू आर नो वन टू गिव इट टू मी। एंड आई वॉज लिटिल हार्श बट ही थॉट ही वॉज राइट, ही वॉज रॉन्ग इन फैक्ट एंड ही टोल्ड मी, उसने मुझे बोला कि तुम सही कह रही हो, मैं तुमको लिबर्टी देता नहीं। सो एक मेंटल ब्लॉक हम सब में है और हम थोड़ी सी अगर साथ में यात्रा करेंगे तो मेंटल ब्लॉक निकल के बाहर आ जाएगा और हम लोग एक झगड़े की शुरुआत नहीं करेंगे। इट्स लाइक गोइंग हैंड इन हैंड, गोइंग टुगेदर एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर लव, शेयर अफेक्शन, और उसी पॉजिटिविटी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये इस रिजॉल्व के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ कि हमारे 365 डेज हैं, 8 मार्च अकेला नहीं है। धन्यवाद। Dr. Priyanka Mishra, thank you so much for reminding us that we need to celebrate women's freedom, women's empowerment, not just one day of the year, but all 365 days. And we have to claim back our liberty. It's something that we have lost along the way, but it's time for us to pick it back and claim it back. Thank you so much for reminding us of that. May I now invite Mrs. Sushila Madan Pural, please, to come and tell us a few words. मंच पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और सभा में आए हुए सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपके बीच में पहली बार आई हूँ, पर मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं पहली बार आई हूँ। सबसे पहले तो मेरी बहनों को मैं महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। वैसे तो महिला दिवस 8 तारीख को है, पर आज यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं, आज ही हम मना रहे हैं। उसका सबको मैं तहे दिल से महिला दिवस मुबारकबाद देती हूँ। जैसे फूल जोड़ के माला बनती है, पर घर परिवार में एक महिला ही पूरे परिवार को एक गुलदस्ता की तरह बना देती है। महिला वो नारी है कि आज जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, उसमें भी महिलाओं को बहुत मान सम्मान दिया था और अधिकार भी दिए थे, और वो अधिकार आज पूरे हो भी रहे हैं। राजनीति के अंदर देख लो, शिक्षा के अंदर देख लो, आज हमारी महिला कहीं पे भी ऐसा कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की महिला ना हो। मैं भी 5 साल पहले एक घर चलाती थी, मुझे नहीं पता था मैं कब राजनीति में आ जाऊंगी, पर घर चलाते चलाते जब मैं राजनीति में आई तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, मेरी एक अलग पहचान भी बनी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं महिला हूँ, पर अपनी पहचान नहीं हूँ, मैं दूसरे के नाम से जानी जाती हूँ कि यह उसकी पत्नी है, यह उस घर की बहू है, यह उसकी बेटी है। मैं कहती हूँ कि आज हर महिला अपने आप को आगे ला सकती है, आगे आके अपनी पहचान बना सकती है और बना भी रही है। जैसे अभी मंच पे मेरी बेटी बैठी थी, वो IAS ऑफिसर थी, और भी जो मेरे यहाँ पे बैठे हैं सभी महिलाएं कुछ ना कुछ अच्छे पद पे हैं और दिन प्रतिदिन महिलाओं की आगे से आगे पद पे बढ़ती हुई जा रही हैं। तो मैं सभी से ये कहूँगी कि महिला अब पीछे नहीं है,
महिला पुरुषों से आगे है। एक वक्त था तब महिला को पैर की जूती समझा जाता था और आज महिला सर का ताज बन गई है। पर मैं आप सभी महिलाओं से ये कहूंगी कि सर का ताज बनके अपने आप को इतना भी ना समझे कि पति पति है, घर परिवार में जो हमारे संस्कार है वो हमारे बच्चों में वही संस्कार जाएंगे। ये ना समझे कि आज हमारा अधिकार, आज हमें है वो अधिकार मिल गए, हम कहीं पे भी आवाज उठाएंगे तो हम नारी की ही सुनाई लेंगे। पर ऐसा नहीं है, हमें अपना और अपने परिवार का सम्मान बना के चल रहे हैं। और भाई साहब अभी आपने कहा कि मैं बीजेपी से हूँ, मेरे यहाँ पे आके देखिए कि जो सीट पे आ गया वो जनता की सेवा के लिए आया है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पार्टी 10 दिन की, उसके बाद जो भी जीत के आए वो समाज की सेवा करे। और इसी पे मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। नमस्कार। आपने जो बताया कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसे विभाग नहीं है जहाँ पे अभी महिलाएं नहीं हैं, बहुत अच्छा लगा ये सुनने के लिए। और उससे भी अच्छा लगा कि हम सबको अपना ही पहचान बना के रखना चाहिए, अपने संस्कार और सम्मान में रहिए। थैंक यू सो मच। नाउ I'd like to invite Deendayal Agarwal ji, please come. Deendayal Agarwal ji is the founder CSR Research Foundation and former director of the Bank of Maharashtra. थैंक यू मैडम। मैं लास्ट ईयर भी इस प्रोग्राम में आया था, लेकिन लास्ट ईयर इस साल में बड़ा अंतर है। लास्ट ईयर सब डाइस जितने भी लोग थे सिर्फ 26 महिला थी। आज यहाँ उल्टा हो रहा है, आज केवल मैं ही दूसरा बाकी सब महिला है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है कि मनोज जी ने मेरी बात मानी। मतलब जो चीज़ें मैंने कहा था कि भी महिलाएं ज़्यादा होनी चाहिए, तो उन्होंने इस बात को माना। बहुत बहुत थैंक यू। मैं सिर्फ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारी संस्था CSR रिसर्च फाउंडेशन मेंस्ट्रुएशन पर बहुत काम करती है। हमारा मेन उद्देश्य है मिशन ट्रिपल ए। मिशन ट्रिपल ए क्या है? अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द सैनिटरी नैपकिन टू प्रमोट ह्यूमन हाइजीन, हेल्थ केयर एंड एम्पावरमेंट। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं दिल्ली के लगभग सभी कॉलेज में मशीन लगाई हुई है, सैनिटरी नैपकिन पेंडिंग मशीन। हमने ये मशीन शुरू किया 2015 में। तो एक कॉलेज है अदिति कॉलेज, जब मैं पेंटिंग मशीन लाने गया तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आपने स्टार्ट कैसे किया, आपको ये मेंस्ट्रुएशन के बारे में कैसे आया कि भी हम सैनिटरी नैपकिन को प्रमोट करें और जगह जगह सैनिटरी नैपकिन पेंटिंग मशीन लगनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं अपने बच्चे के साथ ट्रेड फेयर जाता था, तो ट्रेड फेयर में लगभग 20 लाख लोग आते हैं। अगर आपको देखा होगा कि तो शायद आजकल बन रहा है ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में, तो उस वक्त 20 लाख लोगों में लगभग 8 से 10 लाख लेडीज आती हैं और हर लेडीज कम से कम 8 to 10 आवर्स स्पेंड करती है। तो मैंने कि जब मैं जाता था तो देखता था अगर किसी को इमरजेंसी में कोई मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मेंस्ट्रुअल कॉल आ जाती है, तो वहाँ किसी भी फेयर में एक भी जगह सैनिटरी नैपकिन नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ मशीन लगाई है। तो ये विचार मेरी बेटी के, जब मैं जाता हूँ बच्चों के साथ, तो महसूस होता है। मैं महिला नहीं हूँ, पुरुष हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं महिलाओं की समस्या के बारे में सोच सकता हूँ और उनके लिए काम कर सकता हूँ। यही भावना अगर हर पुरुष में आ जाए तो मेरे ख्याल से ये अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिवस जो बनता है वो एक बड़ा सार्थक होगा। हर पुरुष समझे कि महिलाओं की समस्याओं समझे, उनकी नेशनल को समझे, यही बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि महिलाओं को की संबंधित जो भी नेचुरल कॉल है उसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। मैंने कम से कम 1.5 लाख लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज और स्कूल मैंने 200 मशीन लगाई है, सैनिटरी नैपकिन पेंटिंग मशीन, और कम से कम 1.5 स्टूडेंट जो गर्ल्स स्टूडेंट है, मैंने उनको एड्रेस किया है कि मेंस्ट्रुएशन जो है दिस इज नॉट ए मतलब कहते हैं टैबू नहीं है। वी शुड टॉक, वी शुड डिस्कस और कभी इससे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा यही सिखाता हूँ स्कूल कॉलेज में जाके, और मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ सब पुरुष बैठे हैं वो मेंस्ट्रुएशन को गलत नहीं माने, इसको एक सेलिब्रेट के रूप में, यही मेरी एक सोच है, यही मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैंने इससे थोड़ा आगे बढ़ के काम सोचा है कि जो बहुत सी लेडी नैपकिन यूज नहीं कर पाती तो उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब एक सर्वाइकल कैंसर होता है। तो हमारी संस्था सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ऑरल कैंसर इस पर काम कर रही है। मैं चाहता हूँ वो भी पर्टिकुलर वीमेन के लिए
तो उसमें मैं चाहूँगा कि इस तरह का काम करने के लिए हम आगे बढ़ें, उसमें हमें आप सभी का सहयोग मिले। Thank you, Deen Dayal ji. It was so nice to know that last year and this year the dais has totally changed, and I hope next year we'll be able to have a balance. Like, yeah, 50-50, that would be ideal, right? That would be so nice. That would be wonderful. May I now please call upon Her Excellency Dr. Janice Darbari. She is the Honorary Consulate General of Montenegro in India. Madam. Honorable members on the dais, this dais is very empowered. We have with us a very famous politician, we have somebody from the services, an IPS officer. We have Chavi, who is outstanding in her work as an entrepreneur, and we have somebody who is a chartered accountant and a financier. As we all know, today is Women's Day, tomorrow is Women's Day, and day after is Women's Day. So in that happiness, we are all gathered together, and thank you very much for having honored me on this day. And when Chavi did invite me, I said, well, you know, the lockdown is over. We will try and maintain the diplomatic protocol, but at the same time, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ कि आपने इतना बड़ा महफिल जमाया। On an international level, as the head of mission of a beautiful country, which I'm not going to explain, but I think our friend out here, Mrs. Mishra, she's been to Montenegro. And she was telling me that it's a beautiful place. It's outstanding. The people of Montenegro are all 6 feet, 6.5 feet, very good looking. It's, if you've heard of Yugoslavia, former Yugoslavia, then Montenegro is a part. It's a beautiful country now. So as the head of mission for the past 15 years, we have built very good relations with India. We've had our foreign minister's visit also, our finance minister's visit also. And I would like to say one thing. On every level, what I have seen, the relationships are strengthened further and further and further. And now today, I can assure you, with your organization, I'm looking forward to strengthen it even further. So, with all the women sitting out here, of course, there's an invitation for all of you to travel to Montenegro and have a look at that beautiful country. It's a country which, Mr. Heyman, when you are training pilots, you know, if you read the reports of the pilots landing in Montenegro, they always say it's breathtaking. The sea is beautiful. The environment is absolutely gorgeous. In fact, when we were discussing medical tourism with India, the very important thing came out is that we do have in India fantastic infrastructure for medical help. So I told them, after they have a good operation in India, the best place next to visit is Montenegro. Because if you do that, then it is Sone Pe Suhaga. So that is the type of relationships we can have. And I hope that when you do visit Montenegro, Mr. Heyman, in your course of training and do some collaboration with our pilots also, it will be most welcome. Raj Darbari mentioned in America, what were they talking of sexual liberation? Thought, ideology, thinking is universal. हम लोग कोई अकेले नहीं बैठे। आप जो यहाँ सोच रही हैं, शायद वो भी एक स्त्री मॉन्टेनेग्रो में या अमेरिका या रशिया कहीं भी बैठे सोच रही होगी। हालात कैसे हैं, उसने हालात को अपने सामने कैसे उसको एक इम्पेडिमेंट नहीं समझ करके she has actually achieved something. और वो जैसे हम सब जानते हैं कि अगर आप सोच
आपका दृढ़ निश्चय है, then nothing can stop you. I see some very young girls at the back. Do you find in today's society anything can stop you? Say it loudly. No. Now that is the voice of India today. No. And when I see that young girl from Kushinagar, and she gave her opening speech out here. Actually, Kushinagar being the land of Buddha's birthplace, it is now one of the most important strategic point of view of tourism also. It's going to change the whole contours, the thinking of people. The people from Japan when they come, or different countries, you are going to be forced to interact with them. And that's what happened also in the terrain of the Balkans. हर एक चीज बदलता है. And the women and men get an equal chance to take the opportunity. मैं ये नहीं सोचती हूँ कि women are today backwards in our country, क्योंकि मैंने tribal लोगों के साथ भी काम किया हुआ है. And I've had the opportunity of also seeing the exploitation of the domestic workers. I've helped them are equally vibrant and they want to come out of that cycle. But the social pattern in India, unfortunately, pulls them down. The tribal laws sometimes are so captive, they capture them in a different way. तो वो जो बेड़ियाँ हैं, उसको हम ओवरनाइट तो कभी भी, आई थिंक स्वतंत्रता भी हम लोगों को पता नहीं ब्रिटिश से कितने साल हम लोग लड़े तब जाके आज़ादी में. But there is nothing known as आज़ादी for a woman. क्योंकि वो जो है, अगर देखा जाए, she is a beautiful form of a goddess. जब आप हैं goddess, आपके दोनों हाथ से देना ही देना है. चाहे आप माँ बन के देती हैं, चाहे आप बेटी बन के देती हैं, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर बन के देती हैं, आप देती तो ज़रूर हैं. और जिसने धरती माँ को दिया वो तो हमेशा देता ही रहेगा. आपकी कोख से जन्म होता है, चाहे सीता का स्टोरी क्यों ना हो. आप जितने भी पौराणिक कथाएं पढ़ें, चाहे पार्वती के बारे में पढ़ें, चाहे राधा जी के बारे में पढ़ें, दुनिया बहुत सुंदर है. We've always had the men helping the women. They both complemented each other. They've never been apart. चाहे आप शिवरात्रि जब आप मनाते हैं, तो इस बार जब लोग कह रहे थे, बहुत लोगों ने दिल्ली में बनाया शिवरात्रि, कोने कोने में बनाया, और सब लोग कह रहे थे वो अरे अपने बारात के साथ, पार्वती जी के साथ. तो कितनी सुंदर सपना है सबका. तो इस देश में जहाँ पे पौराणिक कथाओं से लेकर के आज तक, आज के युग तक सब लोग एक स्वतंत्र स्वभाव से रहते हैं, तो मैं नहीं सोचती हूँ कि यू नीड टू बी लिबरेटेड. यू नीड टू जस्ट रीच आउट एंड टेक इट. क्या करेगी और क्यों नहीं करेगी? Yes, it is difficult. It is a challenge. कभी आपको कोर्ट केस लड़ना पड़ सकता है, कभी आपको अपने माँ बाप के साथ आप नहीं रह सकते हैं, एक घुटन महसूस होती है. आप अपने आप को सोचते हैं आप स्वतंत्र हैं, सो आप कहीं अकेले चले जाते हैं और दूसरे अकेले फ्लैट में रहते हैं. लेकिन अगेन आपके एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो जाते हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड्स हो चाहे गर्लफ्रेंड्स हो. स्वतंत्र वो इंसान है जिसका स्वभाव स्वतंत्र है. हर एक स्थिति में you have to learn to enjoy it. The more when I say you will see the light, आपको एक दृष्टि नजर आएगा कि आप कर क्या रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं. अगर आज मैं इस ऊंची पद पे पहुंची तो it has not been a joyride. Politics जबरदस्त है. I am the only lady. And to hold such a high post, it was not easy. So अगर किसी ने सोचा है कि she is there and it is easy to be, no, it is not. But it has never broken my spirit. If you allow anything to break your spirit, you are broken. आपने जिस वक्त ठान लिया कि आपको कुछ करना है, चाहे अपने लिए, चाहे देश के लिए, चाहे जनता के लिए, जैसे आप खुद एक पॉलिटिशियन बन के कर रही हैं,
आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी ऊपर है और उस पर खड़ा उतरना कितने हृदय शक्ति चाहिए। अगर वो हृदय शक्ति आप में नहीं है तो आप नहीं जीत सकते। तो ये सब सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक इंसान का स्ट्रगल है फ्रॉम विद इन, और हर एक चीज को आपको खुद करना पड़ेगा। चाहे आपके भाई हैं, चाहे आपके पिता हैं, चाहे माँ हैं, चाहे बहन है, चाहे आपके दोस्त हैं, सब लोग आपको एक दूसरे नजर से देखेंगे ही देखेंगे और कहेंगे भाई तुम ये क्या कर रही हो, तुम कौन हो, तुम ऐसे अपने आप को बहुत समझती हो। ये बात आप लोग सबने सुना होगा, am I right? कि तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को। लेकिन यही बात है कि वो जुनून जो आप में है कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि जब तक आप में कोई समझ नहीं है तो फिर आप है कौन। तो वो जुनून, जबरदस्त जुनून जो आप में होता है वही आपको चमकाता है, and वही जुनून इस स्वावलंबी का। Exactly. You know, when I was in Montenegro, my mother was it was my inspiration, and so was my father. दोनों कहते थे whatever you want to do, you do. उन्होंने कभी ट्रीट नहीं किया कि मैं एक लड़की हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग कुछ और ही है, तुम कुछ और ही सोचती हो, तुम कुछ और ही करती हो, तुम कर। तो fair it's at least I have to। उन्होंने मेरे ऊपर जब सब चीज़ छोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरा है कि मैं उनका नाम ना बदनाम करूं। तो I was more responsible. I had to become responsible. I had to become, in many times people would say you become a bully. But no, I'm not a bully. But yes, I'm strong in my viewpoint. That's how you place your thought. जब you are placing your thought, तो उसका जो विचार और विमर्श होता है कभी ईगो से साथ नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी बदल जाता है। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा रहो जब भी आप कोई काम करते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव रहेंगे यू विल बी मोर सक्सेसफुल, क्योंकि इमोशनल जो होता है, थैंक यू फॉर ऑल दोज एप्रिसिएशन, बट जब इमोशनल कोई होता है the mind can get clouded. So you have to be clear in your objectives, your principles, your thoughts. And that is what people celebrate actually on Women's Day. I don't know your name. Yes. What's your name? I'm after retirement, I retired in 2011. After that, I did my MA. I did DMIS, and I got doctorate in school. No, you were sitting there and your teacher was attracting me. कि ये कुछ आप लोग काम आप लोग I don't know her. But जब एक समुद्र का मंथन होता है ना, तो जो महिलाएं कुछ उभर के सामने आती हैं, तो उनकी चेहरे पे एक रौनक आता है, एक स्टर्डीनेस आता है, एक ऐसा सोच आपको दिखाई देता है कि हाँ, students, they are doctors, engineers, and high positions. You're absolutely right. Women have moved on, and today when we really celebrate, it's a celebration of that moving on. It's a celebration that they have achieved. It's a celebration that there is some more to achieve and there's lots more to do. My beautiful child, she doesn't look at the gender, it's a boy or a girl. But the tenets of peace are ingrained in her womb. क्योंकि जब वो माँ बनती है, वो 9 महीने उस बच्चे को पालती है अपने कोख में, तो जो उसकी सोच होता है वो बच्चे के मन में जाता है। मैं जिन स्कूलों में मैंने पढ़ाया, मतलब या एज प्रिंसिपल, वहाँ ऐसे बच्चे आते थे जिनकी खाने में भी टर्न लगती थी। वहाँ पहुँचे हुए डॉक्टर्स बने हुए एंड दे कनेक्ट मी ऑन फेसबुक। वो ही भूख और प्यास, मेरा रूह कहाँ जाती है? वो ही भूख और प्यास की वजह से वो बच्चे बने भी हैं। वो बच्चे बने हैं क्योंकि उनको भूख और प्यास था। जो सैटिस्फाइड इंसान है वो कभी बनते ही नहीं, वो घर में बैठे रहता है सैटिस्फाइड। धन्यवाद सूक्ष्म जी, बीच में
as the woman today, whether if you go to UK, there was this virginity test which took place in 1978. Virginity test. कि क्या वो महिला ने सेक्स किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया, तो वो कह रही है she is coming to marry an Indian person in UK. So the immigration would actually put her through the virginity test, whether she's a virgin or not. और वो महिला, सब महिला पंजाब और जहाँ से आ रहे थे into UK, they were succumbing to it. We were young journalists, me and my sister Raj, and we decided to raise the issue. अब सब जो वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा तुम रेज इशू करोगे, इमिग्रेशन स्टॉप हो जाएगा, इंडियन वुमेन वोट का। अब हमारे गवर्नमेंट का भी सोच वैसे ही था कि भाई ऐसे इश्यूज को जब तक चल रहा है चलने दो। क्यों चलने दें? हमने कहा नहीं चलेगा। हमने अपने एडिटर से बात किया, ही वाज ऑफ द आनंद बाजार पत्रिका, तो उन्होंने कहा यू जस्ट गो अहेड एंड डू व्हाट यू हैव टू डू। So we interviewed the person in the parliament, Jo Richardson, I can never forget her name. She turned around and said, you know, if she was Maggie's daughter, she would have sucked the immigration officer in the face. Why do you Indian women lie down and take it? तो यही बात जितने भी हमारे भाई लोग थे in South Hall, हमने सबको बोला कि what is all this nonsense taking place? आप लोग आवाज उठाइए, हम लिखेंगे, आप लोग आवाज उठाइए, और the member of parliament, they have decided also to support us. And within a week, we had results. And that immigration officer was told that you cannot do it, and the law was set aside without any litigation. So this is the power of you all. You can change things, but banned from coming to UK, तो poor Indian women ही रह जाती ना, और उनके भाई बंधु सब चुप, क्योंकि सबका कोई मतलब अटका हुआ था. It was really very shocking. So that's how it is. Sometimes your family will not support you if it is of economic interest of their own. But you need the right support from society. And I'm so glad, Chavi, you're doing this, because she's trying to bring the righteousness out. She's trying to create the wave of the woman out here sitting and the men, that let's change our thinking. Let us all get together. Let us build the new world order, which will see equal participation. In fact, women have a lot to play for environment. आप लोग अगर घर में महिला बैठी भी हैं, I would say as housewives, your first priority to be on an international level with the World Environment Day and take care of the environment in our country. I have started a campaign that lock your baggage of the garbage, because when we had coronavirus in the lockdown, you know, in Greater Kailash, where all the very rich people stay, 200 people died in the month. And the press didn't raise the point. Nobody wanted to talk about it. I said, listen, this is not on. So they said, Janice, only you can raise it. I said, what do you mean I can only raise it? If you guys are going to help me, I'm going to raise it. So I told my friends who are in the RWAs, you are going to do a TV program on it. So they said, okay, we will do something. They got people together. I raised the voice. We created an environment committee and we said, listen, the garbage, the moment it leaves your house, if it is opened outside, the secondary transmissions of coronavirus is in the air. और यही हो रहा था. फिर लोगों ने आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि हमारा गार्बेज तो खुला पड़ा रहता है, सब सॉर्टिंग और बाहर होता है. और फिर हमने कहा वो गार्बेज कहाँ जाते हैं? ओखला डंप यार्ड. साउथ दिल्ली इज अफेक्टेड बाय ओखला डंप यार्ड. गाजियाबाद, right? Gaziapur. And the greeter is Arvind ji, Manoj ji and Shavi ji.
Dr. Janice Darbari, thank you so much for your kind words. Thank you so much that you gave us a warm welcome into this beautiful country of Montenegro, and also reminding us that in every situation we need to learn to enjoy ourselves and to take charge of ourselves. And I think what really stayed with me the most is the fact that you said the woman is growing into being the woman. We're in our stages of growing, and I thank you so much for your lovely words. We'd like to now call upon Surinderjeet Singh ji. Please come and speak to us. सुरेंद्र कौर जी हैं, जीत सिंह तो सिंह साहब के साथ लगता है। मैं छोटा सा संस्मरण दे देता हूँ। इन्होंने कहा समझ तो मेरे को भी आती है, पर ये जो मेरे कंधे पे जिम्मेवारी है उसका निर्वहन मुझे करना पड़ेगा। और उस दिन के बाद आज तक वही सम्मान जो डॉक्टर जेनिस दरबारी का है वही मेरे लिए सुरेंद्र कौर जी का है। स्वागत है कि मैं जोड़ रहा हूँ। डायस पर उपस्थित सभी रिस्पेक्टेबल्स, हॉल में उपस्थित सभी डिग्निटीज जो अवेलेबल हैं इस टाइम सभी, और सभी हमारे बहनें भाई जितने भी हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं सभी को सबसे पहले नमस्कार करना चाहती हूँ। और वुमेंस डे पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसके लिए मेरे को अभी लिस्ट मिल गई है सभी के लिए। हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर जानिस दरबारी जी, और स्पेशल गेस्ट हैं हमारी डॉक्टर प्रियंका मिश्रा IPS हैं, मैं बैठी हूँ साथ में सुशील, और हमारे स्पेशल गेस्ट जो है सुशीला मदन कोरवाल जी, और गेस्ट हैं हमारे दीनदयाल अग्रवाल जी, फाउंडर छवि हेमंत जी, और हमारे अशोक त्यागी जी जिन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आप लोगों से रूबरू होने के लिए और सबसे बातचीत करने के लिए। तो इस लायक तो नहीं हूँ, पुलिस वाले तो कहाँ ये भाषण दे सकते हैं, और इन्होंने पता नहीं कैसे डायस पे खड़ा कर दिया मुझे कि एम्बैरेसिंग सा लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों के सामने में क्या बोलूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मैं दिल्ली पुलिस में ACP हूँ पिछले 37 साल से, 37 ईयर्स हो गए जॉब करते हुए, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल को भी मैं डील कर रही हूँ। मेरी पोस्टिंग साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर कि वुमेन रिलेटेड जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको मैं उनकी इंचार्ज हूँ। 15 पुलिस स्टेशन हैं जो उनको लुक आफ्टर करती हूँ मैं, और साथ में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हूँ मैं, जो कि हमारे जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं, आसपास पड़ोसियों का झगड़ा, घर में छोटे मोटे झगड़े, या कोई आपस में गाड़ी पार्किंग को लेके, कोई और इश्यूज़ को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, इस तरह के जो मसले होते हैं उसके वो मेरी कोर्ट में आते हैं। कई बार जो फ्रेश मुलजिम अरेस्ट होकर आते हैं, जो लड़ाई झगड़ा रोड के ऊपर कर लेते हैं, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, तो उस चीज़ को लेके मेरा जो है वो मैं इन सब चीज़ों को डील करती हूँ। अपनी मेरी खुद की कहानी भी छोटी सी इंस्पायरिंग है कि जो बात आज महिला सशक्तिकरण की हम करने के लिए आए हैं और बात करने आए हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब 50 ईयर पहले 37 तो मेरी जॉब हो गई, जो एजुकेशन का पीरियड था मेरा सारा मिला के पैदा होने से लेकर पंजाब में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं पैदा हुई थी, और उसके बाद पैदा होने के बाद दिल्ली, मेरे फादर जो थे वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, तो यहाँ पे लाके जैसे एजुकेशन वगैरह हम लोगों की हुई। तो पहले क्या होता था कि आप भी सारे समझते हैं जितने जो मेरे एज के हैं सभी लोग, कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एजुकेशन का वो लेवल नहीं था। 10th 12th करने के बाद घर में बिठा लिया जाता था कि अब शादी का वक्त आ गया, तो घर के काम में निपुण होनी चाहिए, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो है वो अपनी पढ़ाई आगे नहीं, एजुकेशन नहीं होगी। लेकिन शुरू से जब से पैदा हुई और थोड़ी बड़ी हुई और समझना शुरू किया अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी आसपास की एटमॉस्फेयर को, तो ये मन में इच्छा जागी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जो आगे जाके मैं समाज के लिए कुछ, अपने लिए कुछ, अपने परिवार के लिए कुछ, महिलाओं के लिए कर सकूं। तो दिल्ली पुलिस में आने की इच्छा थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आकर एक पावर आपको मिलती है, पावर के साथ जब आप एग्जीक्यूशन करते हैं ग्राउंड लेवल पर, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आप जो मुद्दे हैं उनको आप हेल्प कर पाते हैं आम पब्लिक को, जो क्योंकि डेली इंटरेक्शन होता है पब्लिक के साथ, और सारे हर तरीके का क्राइम जो है वो रिपोर्टेड होता है पुलिस के पास। तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं पुलिस में आऊँ। तो 12th के बाद मुझे भी घर बिठा लिया गया कि अब आप आगे नहीं पढ़ेंगी, और लेकिन मैं कांस्टेबल रैंक पर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि कांस्टेबल को तो हर कोई बंदा कमांड देता रहता, 24 घंटे इधर से उधर भागता रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं थोड़े अपर रैंक पे जाऊँ, कम से कम एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर तो बनूँ मैं। तो उसके लिए मुझे ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी था। घर में लड़ाई की, भूख हड़ताल की, किसी तरीके चलो कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करने का मौका मिला। तो अगर उस टाइम मैं
पीछे हट जाती, पेरेंट्स की बात को मान लेती, एक लीग से अगर अलग हटके कुछ ना करने की मेरी जो इच्छा है वो नहीं होती, तो शायद मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ी हो जाती जिससे बात नहीं होती। तो बेसिकली उस टाइम का वो जो मेरा क्रोध कह लो या ये कहिए कि जो मेरा जज्बा था, जो मेरी जिद थी, जो मेरे आगे बढ़ने का मुझे एक जो प्रेरणा थी मेरे मन में, उसने मुझे इस तरह का मौका दिया कि मैं हर तरीके से मैंने अपने कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सारे जो मेथड मैंने घर में भी इस्तेमाल कर दिए कि मुझे एडमिशन चाहिए चाहे कैसे भी चाहिए। लास्ट डेट में कॉरस्पॉन्डेंस में एडमिशन हुआ, ग्रेजुएशन चलो मैंने की, कोई ट्यूशन नहीं होती थी, कोई क्योंकि 12th तक भी नहीं कभी ट्यूशन। जिस फादर के 6 बच्चे हों वो कहाँ से पढ़ाएगा और क्या करेगा, जिसकी 4 बेटियाँ हों 2 बेटे हों तो कहाँ से वो एजुकेशन प्रॉपर देगा, कहाँ से ट्यूशन्स वगैरह देगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्हीं पेरेंट्स ने हमें मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, तो चलो कॉरस्पॉन्डेंस से भी हमें ग्रेजुएशन करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिए, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। साथ में क्योंकि ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया था तो एक यूपीएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर भी बनने का मौका मिला। दोनों अपॉइंटमेंट लेटर इकट्ठे घर आए। फादर क्योंकि उस टाइम पुलिस में थे, वो सारी सिचुएशंस को जानते थे, छोटे रैंक पर थे, उनको लगता था कि पुलिस की नौकरी इतनी मुश्किल है कि इसमें ना तो व्हीकल्स प्रॉपर होते हैं, उस टाइम बसेस भी बहुत कम चलती थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी प्रॉपरली, कैसे ये जाएगी, रात की ड्यूटियाँ होती हैं, दिन में काम करना, रात को काम करना, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाना, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। पर पता नहीं ये कैसे करेगी, और वो उनका यही था कि पुलिस में नहीं जाना, बाकी सब जगह जाओ, बाकी और भी जो मर्जी ज्वाइन कर लो। मुझे लगता था कि नहीं, पुलिस में ही जाना है, क्योंकि पुलिस में रह गई तो मैं कुछ कर पाऊंगी, अदरवाइज तो स्टेनोग्राफर बन गई तो शॉर्ट एंड टाइप लिखी, बॉस के पास लेके गई डिक्टेशन, उसने कुछ गलतियां निकाली, दोबारा फिर करेक्शन की, फिर लेके गई, बस यही चलता रहेगा और मैं एक स्टेनोग्राफर बन के रह जाऊंगी। तो मैं वो उसको लीग से हटके कुछ करना चाहती थी। ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, पेरेंट्स को जाना पड़ा और इन बिटवीन मैंने पीछे से जाकर पुलिस ज्वाइन कर ली। 1 साल तक मेरे फादर ने मुझसे बात की किसी बात को लेकर कि इसने अपनी मर्जी की है, इसने अपनी मर्जी की है, इसने मेरी बात नहीं मानी है और अब ये सफ़र करेगी तो मैं इसको बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगा। लेकिन जब मैंने आपको ट्रेनिंग में भी बताऊँ, क्योंकि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी उस टाइम पर, आज से 37 साल पहले, आप सोचिए कि औरतों को कितना दबाया जाता होगा। तो ऐसे ही 44 लोगों का हम लोगों का बैच था, 8 लड़कियाँ थी उसमें, 44 लड़के और 8 लड़कियां हम लोग। उसमें ये हो गया कि जो लड़कों का पहला और हमारा लड़कियों का ऐसा बैच था जिसमें हम दोनों को इकट्ठे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। उससे पहले तक क्या होता था, 1985 से पहले, मैं 85 में मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की, उससे पहले क्या होता था कि जितना भी था लड़कियां अलग ट्रेनिंग होती थी, लड़कों की अलग ट्रेनिंग होती थी। लेकिन हमारा पहला बैच ऐसा था जिसमें ज्वाइंट ट्रेनिंग हुई। तो एक फिक्रा कस दिया किसी लड़के ने कि इनका काम तो क्या है, तनख्वाह लेना, कभी लाइट ड्यूटी ले लेती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं, और प्रॉपर जो है वो हम लोगों को हार्ड ट्रेनिंग कराई जाती है, इनसे लाइट ट्रेनिंग कराई जाती है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है और हम लोगों को मतलब जो है इनको तो तनख्वाह हमारे इक्वल लेती हैं। ये बात मुझे इतनी चुभ गई कि मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हम इक्वल तनख्वाह लेते हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे कि हम इक्वल काम भी कर सकते हैं। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की। उस टाइम 100 दंड लगाना, 47 kg वेट था तो लग भी जाते थे, आज की वेट में कोई कहे तो 2 लगाना मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रही हूँ मैं इसलिए थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताने का मेरा रीज़न ये था कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं और उससे क्या एक मोटिवेशन नहीं था, तो हमारा जज्बा दिल में जागता है कि कैसे हमें करना है। तो वो मुझे बात इतनी चुभ गई कि मैंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाना है। उसके लिए मेहनत की और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अपने पूरे बैच को टॉप किया, ऑलराउंड बेस्ट आई, लॉ में फर्स्ट आई और उन सब लोगों को मुँह बंद किए जो ये कहते थे कि महिलाएं जो है वो सिर्फ तनख्वाह इक्वल लेती हैं, काम नहीं करती हैं। किरण बेदी मैम उस टाइम हमारी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी थी, उन्होंने जब देखा कि मैंने टॉप किया है, उन्होंने इमीडिएटली मुझे कमिश्नर साहब से कह के अपने पास पोस्ट करवा लिया। बहुत सारी जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पे मेरी पोस्टिंग रही, काम करने का मौका मिला और हर जगह मुझे ट्रिपल काम करके अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि आई एम कॉम्पिटेंट, क्योंकि वही जब मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी वाली बात थी तो अपने आप को प्रूव करना हर जगह वो बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए ट्रिपल मेहनत करनी पड़ी कि घर भी देख रहे हैं आप, बाहर भी देख रहे हैं, जॉब भी देख रहे हैं और ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं। हर जगह आपको दिन रात काम करके अपने आप को प्रूव करना है कि आप बेटर कर सकते हैं या इक्वल कर सकते हैं। बेटर नहीं कर सकते तो इक्वल एटलीस्ट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें थी। उसमें फिर पोस्टिंग हुई मेरे को SHO लगने का मौका मिला। कमला मार्केट थाना जो कि दिल्ली का सबसे बदनाम थानों में से उसकी गिनती होती है, रामलीला ग्राउंड उसके पास है, GB रोड आपने सबने रेड लाइट एरिया है, आपको सबको पता है। जब पोस्टिंग हुई तो लगता था कि यहाँ पर काम करना तो बहुत मुश्किल है रेड लाइट एरिया में,
क्योंकि वहाँ पर 89 के करीब ब्रॉथल्स हैं वहाँ, और 88 के करीब, और 29 बिल्डिंग है वहाँ की, जिसमें अलग अलग स्टेट से लड़कियों को बहला फुसला के उसको जो है शादी का बहाना करके, उनके साथ प्यार का बहाना करके, जॉब का बहाना करके लाके उनको रखा जाता था वहाँ पे, उनसे फोर्सिबली जो है प्रोस्टिट्यूशन कराई जाती थी। तो वो सब जगह पे मेरी पोस्टिंग जब हुई तो मुझे लगा कि यहाँ पर काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मिथ थी कि लड़कियाँ जो है वो लाके जब वहाँ पर रखी जाती हैं तो पुलिस क्या करती है कि जब भी कोई रेस्क्यू कराने के लिए कोई भी एसोसिएशन आती है, कोई एनजीओ आती है या पेरेंट्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पुलिस जो है वो इन्फॉर्मेशन को लीक कर देती है, लड़कियों को वहाँ से गायब कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां रेस्क्यू नहीं हो पाती और पुलिस उसमें कहीं ना कहीं हैंकी पेंकी कर लेती है। एक रेपुटेशन बनी हुई थी वहाँ की जीबी रोड की। इस मिथ को तोड़ने के लिए भी मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां, आपको पता है जब इस तरह के काम कोई करने लगता है तो उसके साथ अगेंस्ट लोग बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, और उन लोगों के बीच में काम करना, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ छुड़ाने का रिकॉर्ड जो है वो मेरे नाम पे है। उसमें वहाँ से मैक्सिमम माइनर्स लड़कियों को मैंने रेस्क्यू कराया अपने टेन्योर 2.5 साल के बीच में, और साथ में उनको रेस्क्यू कराने के साथ साथ उनके पेरेंट्स तक उनको पहुंचाना, उनको लिए रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना, साथ में उनको 5 लड़कियों की मैंने शादी भी कराई है, आज वो अपने घर में सुखी है, और उन्हीं लोगों ने उनसे शादी की जो डॉक्टर विजिट करते थे। आप ये देखिए कि उन लोगों की फैमिलियों को कन्विंस करना, ना उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करने को तैयार होती है, ना उनको उनकी फैमिली एक्सेप्ट करती है, ना कोई भी मतलब जो है वो इस तरीके से पुलिस की रेपुटेशन ये होती थी उनके आगे कि आप जो आपको पुलिस ये ले जाएगी पकड़ के और जाके आपको न्यूज़पेपर में दे दिया जाएगा, टीवी पे आपकी फोटो आएगी, आपको घर में नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको पुलिस जेल में बंद करके रख देगी। इस तरह की रेपुटेशन उन लोगों के बीच में पुलिस की क्रिएट की हुई थी, जिससे वो डरती थी बताने के लिए कि हम यहाँ पर फोर्सिबल ये है, यहाँ अपनी मर्जी मतलब जो है हमें जो अपनी मर्जी से काम कर रही हैं, और जाते थे तो तय खानों में छुपा दिया जाता था। तो मैं जब चलती थी तो वो क्या होता था कि उन्होंने अपने कुछ नुमाइंदे जो अपने उनके टाउट्स कह लीजिए कि थाने के बाहर खड़े रखते थे ये देखने के लिए कि गाड़ी पुलिस की जीबी रोड की तरफ मुड़ रही है या कहीं और मुड़ रही है। तो जीबी रोड की तरफ मुड़ रही है तो इमीडिएटली जो है वो फोन करके बता देते कि मैम आ रही हैं, तो ऐसा ना हो पकड़े जाएंगे, फटाफट छुपा दो लड़कियों को। लेकिन मैंने वो उसका भी तरीका ढूंढ लिया, गाड़ी ऑपोजिट साइड ले जाती थी, वहां खड़ी करती थी गाड़ी कहीं पे, वहां से टैक्सी करती थी, रेड के लिए पहुंच जाती थी सिविल। और मेरे ड्राइवर तक को नहीं पता होता था कि मैं रेड करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये होता था कि अगर मैंने अपने ड्राइवर को भी बता दिया तो ऐसा ना हो कि मेरा ड्राइवर ही कहीं कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, तो क्योंकि पुलिस का है बंदा वो भी लीक कर सकता है। तो इस तरह से करके ये अपने आप को ये सब करने का मौका मिला, जिसकी वजह से मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला, बहुत सारे एनजीओ ने अवार्ड दिया, अमेरिका की एनजीओ ने अवार्ड दिया, दिल्ली वुमेन कमीशन ने अवार्ड दिया, जीजाबाई अवार्ड शिवाजी कॉलेज ने दिया, बहुत सारी एनजीओ से मुझे जो है अवार्ड मिले वो। और दिल्ली का सबसे बदनाम पुलिस स्टेशन 186 पुलिस स्टेशन में से फर्स्ट ला के दिखाया मैंने, हर तरीके का काम करके। वो सब तभी पॉसिबल हो पाया कि मैंने अपने मन में इस बात का जज्बा रखा कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, और वो सब चीज़ें तभी हो पाई। दिन रात मेहनत करनी पड़ी उसके लिए, अपने आप को प्रूव करना पड़ा हर जगह। सुबह से लेकर शाम तक रामलीला ग्राउंड खड़े रहते थे, रात को जीबी रोड को पूरा देखना पड़ता था, उसके अलावा मर्डर, डकैती, रॉबरी, जिस तरह का भी कोई क्राइम होता था उन सबको लुक आफ्टर करना पड़ता था। तो जब करने की इच्छा दिल में ठान लेते हैं, कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर है और हम उसके लिए मेहनत करते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि पूरी कायनात जो है वो आपके साथ उस चीज़ को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। और यही जोश मैं चाहती हूँ कि वुमेन्स अब पोस्टेड हूँ, यही मैं चाहती हूँ कि वुमेन्स डे पर आप इस तरह का ये अपने अंदर जज्बा लेकर जाएं कि आप किसी से भी कम नहीं हैं और आप जो चाहें वो कर सकती हैं। अपने अगर अंदर आप ठान लेती हैं, आपके अंदर हिम्मत है, आप ये सोचती हैं कि आप जो है वो कुछ भी करना चाहती हैं, जो उसके लिए बस आप जुट जाइए और मेहनत कीजिए, फिर देखिए कि आप क्यों नहीं अचीव करेंगे वो चीज़, सब चीज़ें आप अचीव करेंगे। उनके साथ मिलकर जो आपके पीजीज है इनमें सब में लड़कियां जितनी भी हैं, ताकि एटलीस्ट वो अपने आप को इतनी सक्षम तो बना सकें कि अगर कोई रोड पे ईटीज उनको कर रहा है, कोई उनके साथ जो हो रही है उनको हम लुक आफ्टर कर ही रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के साथ साथ मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, घर बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, वुमेन सेल में इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हर तीसरा जो केस है वो वुमेन सेल में खड़ा होता है। शादी होती है तो आने वाले टाइम में तो लगता है कि शायद शादियाँ ही होनी बंद हो जाएगी, जिस तरीके का हालात हो गए हैं।
परवरिश बहुत अच्छी देने की ज़रूरत है बच्चों को, उनको अच्छे से लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, उनको सोशल जो हमारे गैजेट्स हैं इनका जो मिसयूज़ हो रहा है, अच्छा यूज़ हो तो समझ में आता है, लेकिन जो इसका मिसयूज़ हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा रोकने की ज़रूरत है। जो क्योंकि लेडीज़, मैं भी वर्किंग हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को लुक आफ्टर नहीं करूँगी, पुलिस स्टेशन में 24 घंटे रहती हूँ, कई बार तो जब अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे थे 12-12 दिन तक घर जाने का मौका नहीं मिला। 12 दिन मेरे घर में क्या हो रहा है ये अगर मैं नहीं, स्थितियाँ बहुत ख़राब होती हैं। वुमेन सेल में तो चलो जो काम किया, इसके साथ कोविड सेल की इंचार्ज थी। 2020 में कोविड की वजह से मुझे मेरे हस्बैंड को खोना पड़ा, क्योंकि मैं कोविड सेल की इंचार्ज थी, मेरे को कोविड हुआ, मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड की 26 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद डेथ हो गई। उसके बावजूद इंसान उठता है फिर उठता है, वो फिर मैंने अपने आप को उठ के खड़ा करके आज आपके सामने खड़ी हूँ उसी जोश के साथ। खड़े हो गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सिर्फ ये बताना इसलिए चाहा कि इतना कुछ होना, इतना कुछ सहना, वो पीरियड जिसमें हस्बैंड की डेथ हो गई है, मेरी फैमिली का एक भी मेंबर मेरे साथ नहीं है, उनके ब्रदर को कोविड है, वो क्वारंटीन है, एक ही सिस्टर है कनाडा में रहती है, मेरा एक ही बच्चा है वो भी कनाडा में है, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम से वो पीड़ित था, ऑपरेशन उसका होना था, वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ नहीं आ पा रहा है, मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, और खुद मुझे अपने हस्बैंड का संस्कार करना पड़ रहा है, वो भी पीपी किट पहनकर। कितना मुश्किल वो पीरियड होगा मेरे लिए, आप समझ सकते हैं। बेटे का ऑपरेशन हो गया, मैं उसको देखने नहीं जा सकी 2 साल तक, अब जाके कहीं रिस्ट्रिक्शन वो खुली तो तब जाके मैं पिछले 1.5 साल बाद अपने बेटे को देख पाई। और आप सोच ही सकते हैं कि किस तरह की वो परिस्थितियाँ रही होंगी, किस तरह की प्रॉब्लम्स। लेकिन ये सब बताने का मेरा मकसद ये है कि सिचुएशंस बहुत आती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, लेकिन हम तभी कामयाब हैं जब अपने आप को, क्योंकि नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं ना, तो नारी में इतना सारे कुछ गुण परमात्मा ने दिए हैं। उसको जो है एक जगदम्बा, उसको एक काली का रूप, उसको सब रूपों में देखा जाता है। वो इसीलिए देखा जाता है कि वो ममता की अगर मूर्ति है तो वक्त आने पर वो तलवार भी उठाती है, और वक्त आने पर वो हर चीज़ वो काम करती है जो करना चाहिए। तो ये सब चाहती है कि जज्बा आप लोगों के मन में रखें, इसको अपने अंदर की नारी शक्ति को जो है वो जगाएं, काम अच्छे करें, साथ साथ ये भी कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें ताकि घर बच सकें, प्रॉब्लम्स दूर हो सके। वो बहुत ज़्यादा वो इशू में, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा मेरी अगर मैं उस टॉपिक पे बात करने लग गई तो, लेकिन मैं आज की डेट में इन सब चीज़ों से ज़्यादा मैं सफ़र करती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आज सोसाइटी में आ रही हैं, उनको सबको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो एक औरत ही कर सकती है, क्योंकि वो ममतामयी माँ है, वो एक ममतामयी सिस्टर है, वो एक वाइफ के दर्जे से जीती है, वो एक हर रिश्ते में वो जीती है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब आप लोग सभी छोटे स्टेप उठाएंगे, छोटे काम, जैसे मैम अभी बता रही थी कि वो किस तरीके से उन्होंने, जब तक कोई जागेगा नहीं तब तक हो नहीं पाएगा, और हमें सबको जागने की ज़रूरत है, सबको ग्राउंड लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, तभी हम ये सब चीज़ें पॉसिबल कर पाएंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, अपने जितने रूबरू होने का, अपनी बात करने का मौका दिया, और मैं सब अरविंद जी का खास धन्यवाद करना चाहूँगी। बार बार ये मुझे पुकार रहे थे और मैं SCM कोर्ट ले रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई आने में। कोर्ट खत्म करने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, तो आप लोगों के साथ मिलने का मुझे मौका मिला है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और वो सिर्फ इसलिए सुरेंद्र नाथ की बात आपने बड़े ध्यान से सुनी। विकट परिस्थिति में अगर कोई मजबूती से खड़ा रह सकता है, सिर्फ महिला ही हो सकती है। जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो हम पुरुष लोग सोचते हैं क्या हुआ, नाम तो मेरा ही चलेगा। कुंती के पुत्र थे तो कौंतेय कहलाते थे। आज उस परिस्थिति को दोबारा से पुरुष का काम सिर्फ वीर्य डाल के रस की मेल कराने के बाद बच्चे पैदा करने तक सीमित नहीं। पहले बच्चे को माता संभाल रही है, पुरुष को पता भी नहीं होता था कि पितृत्व का भान क्या होता है, उसका आनंद क्या होता है।
परंतु विगत कुछ सालों में मैं देखता हूँ कि पुरुष और स्त्रियाँ मिलकर बच्चों का लालन पालन करते हैं। आप लोगों को साधुवाद की बात है। और ये परिवर्तन सिर्फ एक दिन में नहीं हो सकता। इस परिवर्तन को लाने के लिए कितने महापुरुषों ने काम किया, कितनी महिलाओं ने काम किया, और काम करना जरूरी है। जितने लोग आप लोग बैठे हैं, जितने लोग आज पुरस्कृत होंगे, उन सबसे मेरा यही निवेदन है, लड़ती रहिए। क्योंकि जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि आपके सामने चुनौतियां बहुत सारी आएंगी। हो सकता है आपके परिवार भी सही आए, हो सकता है जेठानी भी आपकी तंग करे आपको, हो सकता है आपकी भाभी भी तंग करे आपको। एक बात मनोविनोद की थोड़ी सी कहते हुए बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। जो लोग शादीशुदा हैं, मैं किसी से हाथ उठाने के लिए कहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को संकोच होता है। जब हमारे घर में हमारे माँ की तरफ से कोई आता है ना, उस दिन खाने का स्वाद ही अलग होता है, क्योंकि उसमें दिल डाला है। सिर्फ एक व्यक्ति ताली बजाना और जिस दिन जेठानी आ जाए, जिस दिन जेठानी आ जाए, तो जो चीज मैं बहुत अच्छी भी बनाती हूँ ना, उसमें भी वो स्वाद नहीं है। वजह वहाँ पर आत्मीयता है और वहाँ पर प्रतिद्वंदिता है। जब तक इन परिवारों में प्रतिद्वंदिता बनी रहेगी, महिला को महिला ही काटने का काम करेगी, आगे बढ़ने का काम नहीं करेगी। मंतव्य बदलना है, सिर्फ मंतव्य बदलना। हम अपने बालकों, पहले तो 5-5, 6 होते थे, पता ही नहीं लगता था कौन कहाँ पढ़ा क्या हो रहा है। आजकल तो एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2। मेरा निवेदन है सभी बहनों से, बेटियों से, अपने बच्चों को बराबर की तालीम दीजिए। जो सुख सुविधाएं आप अपने बेटे को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा अपनी बेटियों को दो, क्योंकि आपकी बेटियां ही कदर करेंगी, बेटे नहीं। मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है, जिनको बुरा लगता हो लगो, सबका साथ देता हूँ, सच बात बोलता हूँ। इसलिए पुनः निवेदन करता हूँ, बेटियों को संभालिए, बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आपका नाम रोशन अगर कोई कर सकती है तो वो सिर्फ बेटी है, बेटों के बस की आपका नाम रोशन। कहने को एडवाइजर होते हैं फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में, मैं इनका स्वागत करें। मैं बाद में शॉल उड़ाने के लिए आ जाऊंगा तो कोई बात ही नहीं, पर इनके हाव भाव से लगता है कि एडवाइजर नेता लग रहे हैं। ये मनोविनोद की बातें सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है। स्माइल प्लीज। अब इतनी सारी महिलाओं के सामने रह के कौन स्माइल कर सकता है? कैसा सवाल करती है? स्माइल नहीं करेंगी तो वो कैसे? नहीं, देखिए, हर एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मुस्कुराते हुए चेहरे देखना चाहता है। इसीलिए मैं यहाँ से हटने की कोशिश कर रहा हूँ। मंच पर आसीन अतिथिगण और आप सब में विराजमान परमात्मा को मैं सादर नमन करता हूँ। 2 शब्दों में ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि पहली बात तो 2 ग्रुप है, VATTC और GSS, गुरु शिष्य संगठन। एक गुरु और शिष्य की परंपरा पर आता है, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि उसके अंदर तकरीबन अभी 300 से 400 लोग हैं, 80% महिलाएं हैं। कि 300 से 400 लोगों में से 80% महिलाएं होना बहुत बड़ी बात है। जो अल्टरनेटिव थेरेपी, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पर अपना कार्य कर रही है पूरे देश के अंदर अलग अलग। अभी इंटरनेशनल लेवल पे वर्क चल रहा है और इन थेरेपियों पे रिसर्च, और 80% महिलाएं जो मेरे ग्रुप में है, तो उनका अक्सर ये कहना है कि सर जब तक आप हैं ना तो हमें सास की जरूरत, ना हमें ननंद चाहिए, ना देवरानी जेठानी चाहिए, क्योंकि वो सारे काम अकेला पूरा कर देता है।
कि ताने भी तो मारने होते हैं। पूरा ग्रुप इधर बैठा है सारा, लेकिन मेरे 2 बेटे हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करूँ, जैसे त्यागी जी ने बोला, जिनके बेटी होती है ना वही देना जानता है। देना वही जानता है जिनके बेटी है। बेटे वाला देना नहीं जानता, इस बात में कोई दो राय नहीं। बहुत प्रैक्टिकल बात है। 2 लाइनों में अपनी बात खत्म भी करूंगा। बाहर की यात्रा सब करे, भीतर की करे कोई। बाहर की यात्रा मतलब आज जयपुर जाना, आज कहीं जाना, ये बाहर की यात्रा। भीतर की यात्रा इन 7 चक्रास की जो यात्रा बिरला व्यक्ति करता है। जरूरी काम सब करे, महत्वपूर्ण करे कोई। जरूरी काम है अपनी लड़की की शादी करना, महत्वपूर्ण करे दूसरे की लड़की की शादी करना। जरूरी काम है अपने सम्मान का ध्यान रखना और महत्वपूर्ण करे दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना। तो ये जो कार्यक्रम रखा गया है महिला दिवस के ऊपर, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सम्मान का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसी शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जब जब मैं आता हूँ तो कैसा लगता है बता दो। चोखा लगता है। चोखा तो मैं हूँ, चश्मा लगा रहा, तालियां बजा के बता दो। नारी को नारी ना समझो, माना नारी नारी है। पुरुष यदि शोला है तो वह भी एक चिंगारी है। कैसे खड़े लगते हैं। कॉर्पोरेट घराने से हैं। हेमंत जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, देखते जलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये चाहता हूँ मेरी प्रत्येक बहन मेरे साथ ऐसी खड़ी हो और ऐसे ही काम करे समाज के अंदर जैसे ही कर रही है। आपको ये बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए ताली बजाओ और बटोली चौका। मोटिवेटेड है। तो मैं आज जो आप लोगों से बात करूंगी अगेन सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं वेट कर रही हैं, उनको हम सम्मान दे पाएँ टाइम से। तो मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहूँगी, एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट। जैसे कि प्रियंका मैम ने आपको यहाँ बताया, मेरी बेटी करीब 5 इयर्स की थी और उसने मेरे से बोला कि मेरे घर ना, मैं जब स्कूल बस से वापस आती हूँ तो 2-2:30 बजे सबकी मम्मियाँ मुझे लेने आती हैं। आप भी एक ऐसी मदर हो जो नहीं लेने आती है, तो आप ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आप भी 1-1:30 बजे तक आपकी छुट्टी हो जाए। तो उसको समझाने के लिए मैंने बोला कि आपको कैसी मम्मी चाहिए, हैप्पी मम्मी चाहिए या सैड मम्मी चाहिए। अगर मम्मी काम करने जाएगी तो मम्मी हैप्पी है, और मम्मी जब हैप्पी है तो शी इज़ अ गुड मदर, शी इज़ अ हैप्पी पर्सन, एंड हैप्पी पर्सन कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ हरसेल्फ। मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम महिलाएं जब काम में जाती हैं हम बहुत गिल्टी लेकर जाते हैं। प्लीज़ उस गिल्ट को डिलीट कर दीजिए। उसको जिस तरीके से आप चाहते हैं उसको अपने दिमाग, दिल, सबकॉन्शियस माइंड से निकाल दीजिए। बच्चे जो हैं हमारे साथ खड़े होकर हमारे को बहुत हेल्प करके हमारे खुद के कामों में आगे बहुत ज़्यादा हमारे को सपोर्ट करते हैं। तो जब भी आप घर से बाहर निकले और कोई बोले अच्छा आप 10 दिन तक बाहर थे, बच्चों को किसने संभाला, डेफिनेटली हर महिला ये पूरा का पूरा कोशिश करती है कि कोई ना कोई किसी भी तरह से बच्चों का ख्याल रखे, चाहे उसमें वो पड़ोसी हो, चाहे घर में रहने वाली कोई भी हमारी महिला जो हमें हेल्प कर रही है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगी, स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट वर्किंग फॉर योरसेल्फ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, हम जब बोलते हैं कि सबने बहुत आराम से बोल दिया कि छवि जी आप तो बहुत सक्सेस मिली। मुझे सक्सेस कैसे मिली? मुझे सक्सेस मिली बिकॉज मेरा किराने वाले ने फ़ोन उठाया, मुझे सक्सेस मिली बिकॉज मेरे दूध वाले ने फ़ोन उठाया और घर पे सब कुछ पहुंच गया, मुझे नहीं जाना पड़ा लेने के लिए।
मुझे सक्सेस कैसे पड़ी? क्योंकि मेरे साथ कम से कम 15 लड़कियों ने काम किया है, जो आज जहाँ जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, और उनकी वजह से मेरे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से पाल पोस के बड़े हो पाए। तो मैं अकेली नहीं थी। जब आप ठान लेंगे कि आपको काम करना है, आप चाहती हैं काम करना, दैट इज समथिंग योर चॉइस, देन यू विल क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपके बच्चों की भी देखभाल कर पाए, आपकी खुद की भी देखभाल कर पाए, और आप आगे बढ़ सकें। सो जब मैंने आपको सबको बोला कि एक होम मेकर होना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो चॉइस आप सब महिलाओं की है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। ऐसा कहना कि सिर्फ एक वर्किंग वुमेन ही सक्सेसफुल है, वो भी गलत होगा। आप होम मेकर रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हैं और अपने आप को बहुत ही आगे ले जा सकती हैं। मेरे हस्बैंड और आप सब लोग कि हम सेकेंड एडिशन पे भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं, और आपको इनवाइट भी देने जा रही हूँ कि अगले साल भी चाहे आपको अवार्ड मिले या ना मिले, आप ज़रूर आइएगा और आप देखिएगा कि हमने आज 1 साल के अंदर क्या तरक्की करी है। फॉर यू, for everyone who wants to become, ensure that every woman is independent and can make choices which she deserves and she wants. बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप एक बात बता दो मेरे को, पहले परेशान कौन कौन है? सिर्फ का फंक्शन अवार्ड गिविंग सेरेमनी शुरू। कभी भी आपने नहीं बजाई, आप सिर्फ मुस्कुरा के हिला रहे से ताली बजाए। एक बार जोर से। मैं दिल्ली में ही बॉर्न बॉट अप इन दिल्ली। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आती, आर वी फेकिंग इट कि नारी को नारी नहीं समझते, नारी को नारी समझो। नारी मतलब फीमेल भी इंसान है, मेल भी इंसान है, राइट? तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन जब ऐसे होते हैं प्रोग्राम्स, उसमें हमेशा मुझे इरिटेशन होती है कि हर दूसरी स्पीच में यही आता है, नारी को नारी नहीं समझते, नारी को ये नहीं समझते, नारी को वो नहीं समझते। आप फेक कर रहे हो क्या ये, या वो चीज़ ला नहीं पा रहे, क्या स्पेशली डिस्क्राइब कर रहे हो? तो चीज़ बहुत इरिटेटिंग लगती है मुझे। अभी भी ये चीज़ इरिटेट कर रही थी, बार बार आप लड़की को बोलते हो, लड़की लड़कों से ऊपर है। भाई लड़की भी इंसान है, लड़का भी इंसान है ना, आप इक्वल मतलब इक्वल रखो। आप क्यों जता रहे हो चीज़ें बार बार बोल के? आप इरिटेट कर रहे हो इनडायरेक्टली। आप अगर अंदर से चीज़ नहीं ला रहे, आप फेक कर रहे हो, आप ये चीज़ मेरा मानना ये है कि अगर सब लोग आपस में बात करना शुरू करेंगे तो बात किसी अंत पर नहीं पहुंचेगी। मेरी बेटी ने बहुत एक अच्छी बात उठाई है, आपने भी उसका समर्थन किया है, परिवार की तरफ से मिली है, उस सभी बेटियों को नहीं मिल पाती। आपके परिवार में हो सकता है शिक्षा अच्छी रही, आपके परिवार में हो सकता है कि आपके जो भाई हैं, आपके चाचा हैं, आपके ताऊ, उन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, परंतु यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बेटियां भी बैठी हैं जो परिवार से लड़कर यहाँ तक पहुँची हैं। आपके लिए एक रास्ता आसान था, उन सब के लिए रास्ता आसान नहीं। बेटा जी आप नहीं कर रहे हैं वो इस्तेमाल, मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु वो समाज कर रहा है। जी आप मैं तमाम बेटियों से बहनों से ये निवेदन करता हूँ, परिवर्तन से अगर आपने अपने मन में ठान लिया तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये मान के चलिए, जैसे इस अकेली बेटी ने आज आवाज़ उठाई है, सारे मेरे मित्र होते हैं। 80-90% गाँव में भी आप उनकी स्थिति देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, आपने बहुत सारी जगह देखी होंगी, पंचायत में लेडीज क्या आती है, लेकिन उसका काम कौन करता है? उसका हस्बैंड। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप तक सीमित नहीं होना, हमें एम्पावर करना है। मैं आपको मैंने भी पहले भी कहा कि जो मेंस्ट्रुअल की मैंने बात करी थी, जो आपने शायद सुनी नहीं सुनी मुझे पता नहीं है, तो मुझे ही बहुत तकलीफ हुई थी। मैं चार्ट अकाउंटेंट था, बैंक में डायरेक्टर था, लेकिन मैं टॉयलेट के बाद खड़ा होकर मेरी मशीन लगी होती थी, मैं भी हेजिटेट करता था। 20-20 लड़कियाँ काम करती थी, वो भी हेजिटेट करती थी कि हम टॉयलेट के बाद खड़े हैं, हम नकदी बांट रहे हैं।
वहाँ बहुत से गांव के लोग लड़के आते थे, ये पूरे मतलब मैं किसी स्टेट में नहीं रहा तो वो कहते थे मैडम जी हमें वो दे दीजिए आप, नेपकिन होती है वो नेपकिन समझते थे आप पहुँचने के लिए। ऐसा नहीं है, अभी भी समाज में बहुत जरूरत है, नो डाउट। हम 5% 10% पहुँचे हुए हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट 9%। ठीक है, नहीं मैं नहीं करूँगा, करेंगे बहुत है इतना तो यार। मैं तो पहले कहा था कि आज मैं सेवक के रूप में रहूँगा, एक प्रधान सेवक है वो 10 मार्च के बाद यूपी भी नहीं संभाल पा रहे। भाई बुरा मत मानना, जो बीजेपी के हो और जो बीजेपी की नहीं है वो ताली बजा लो एक बार, बजा दो एक बार, ये हाल की है। Please request Dr. Kusum Lunia to please come out. She is a poet, writer, author and a social activist. Please come out. मैं मेरा लोग हाथ में आते ही हाथ ये भी खत्म हो जाता है। कुसुम जी से मैं निवेदन करूँगा सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बोल सकती हैं। मैंने कई बार इन्हें 1.5 2 घंटे भी झेला है। डॉक्टर धनपति लुनिया को मंच पे बुलाना चाहूँगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबका अभिमान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सबका स्वाभिमान है। स्वावलंबिता के इस जुनून में माँ भारती को प्रणाम, माँ सरस्वती को सलाम। मेरे देश की एक एक बेटी आसमान में जाकर कल्पना चावला बन सकती है तो स्वरों में डूबकर लता मंगेशकर बन सकती है। मैं भी इसी तरह की एक बेटी जो गांव में पली बड़ी और वहीं पे शादी हुई, इतना घूंघट में रहा करती थी। पति का सहयोग मिला, स्विमिंग चैंपियन बनी, बेस्ट कपल अवार्ड लिए और लेखन के क्षेत्र में जब पढ़ाई बीच में छूट गई थी शादी के समय, शादी के 15 साल बाद MA किया, यूनिवर्सिटी टॉप करके PhD किया। डॉक्टर APJ कलाम के हाथों से मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली। मैं क्वालिफाई करने के साथ उसमें डिस्टिंक्शन मिली। फिर मैं लेखन के क्षेत्र में आ गई। पहली ही पुस्तक शाकाहार श्रेष्ठ आहार को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। उसके बाद में नक्सलवाद पर मेरी बुक आई शिखर तक चलो, जिसे ऑडियो बुक के रूप में भी लाखों लोग पढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय मेरी उस रिसर्च को उपयोग करके और नक्सलवाद की समस्या को समाधान करने में मेरी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पे मैंने नाटक लिखा ऊंची उड़ान। जब उसके बहुत सारे शोज हुए तो आप लोगों जैसे जितने भी, चाहे उसमें 1000 2000 3000 जितने भी लोग थे, शो के एंड में सबने खड़े होकर संकल्प लिया कि हम न कन्या भ्रूण हत्या करेंगे, न करवाएंगे और न उसका अनुमोदन करेंगे। और उस लेखनी की ताकत से ही आज आप लोगों से शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम कहीं से कहीं अपने जो जुनून मैडम ने कहा, अगर हम उस पर कमिटेड रहें और अपने परिवार के साथ स्ट्रगल ना करें, अपनी ड्यूटी को निभाएं और परिवार आपका पावर बन जाए, तो आज अभी वर्तमान में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इन दोनों की संयुक्त कमेटी में एडवाइजरी बोर्ड ऑफ मेंबर हूँ। थैंक यू। स्वावलंबी का सम्मान के लिए छवि जी, हेमंत जी और पूरी टीम को, मनोज जी, रीना जी, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इन सब जो हम प्रेरणा दे सकते हैं सब लोगों को, ताकि हमारे देश की बेटियां अपने परिवार को मजबूत करें, देश को मजबूत करें और एक दुनिया को बेहतर प्लेनेट बनाने में भी अपना अहम भूमिका निभाएं। लोग हैं उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा छोटा सा, जितना आप दूसरे से सुनना चाहते हैं, सारी बहनें खड़ी, एक भाई भी खड़ा है और मैं तो बकवास में माहिर हूँ, इसलिए अगला नाम आपके साथ। The next person, please may I invite Mrs. Anju Agiwad to please come out. She's a social worker. परंतु आज आपको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। तालियां थोड़ी सी जोर से बजा दीजिए मेरे सामने।
देखिए मैंने सिर्फ इसलिए कहा था ये कि आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक लाइन बोल के। मेरा नाम अंजू अहिरवार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी हूँ, लेकिन पारिवारिक समस्याएं और बच्चों के लालन पालन की वजह से मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन किया और उसके बाद मैं पहचान NGO से जुड़ी और साथ के साथ मैं कविताएं और ब्लॉग्स लिखती हूँ। आज इस स्वावलंबन सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में मैंने नारी के ऊपर एक कविता लिखी है। अगर आप लोग थैंक यू जन्म तो होगी ना भाई, तो जन्म की तो जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए आज नहीं फिर किसी दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। रश्मि बलूनी जी प्लीज आइए। रश्मि बलूनी जी चेहरे से सौम्य, सॉफ्ट स्पोकन, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, सौम्यता से बात करती हैं, बहुत अच्छी समाज सेविका हैं। बलूनी जी बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं आपको कि आज आप इस पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। आप उन मात्र 20 महिलाओं में शामिल हैं जिनको आज पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। सिटी जिसको कहते हैं, उसको देखकर आपको लगता ही होगा कि वाकई में ही समाज की सेवा कर रही है और आपकी तालियां बज जाएंगी और जब आपका नंबर आएगा तो फिर तालियां वैसी बजवाओगे जैसी आपकी भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दो लाइन। Thank you so much for this honor and thank you so much. I would call it really inspiring, to getting it from all the ladies sitting out here and especially the dais. And कुछ नहीं, बस मैं 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगी। मुझे खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही है हराना, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर है एक ज़माना। Thank you so much. छोटा छोटा बोलते। अगला नंबर आ जाता है ऋचा शर्मा जी, जो कि शिक्षाविद है, एजुकेटिस्ट तो अंग्रेजी में हो जाएगा और एक बड़े प्रतिष्ठित स्कूल में प्रिंसिपल हैं, अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोल सकती हैं, परंतु मैं उनसे निवेदन करूँगा सिर्फ 2 शब्द। जी I just want to thank the dais and getting this award and सिर्फ 2 शब्द बोलने के लिए। So I think this is for the team, my teachers and my parents and my students who have worked with me for more than 25 years in inclusive education and environmental education. Thank you so much. उन्हें पता है 2 शब्दों में अपनी पूरी बात किस तरीके से कहनी है। आप लोगों के सामने रख दें, पर ताली जोर से बजाएं। माइक दूंगा ना तब बोलिएगा ना, पहले ले तो लीजिए। जी जी, तालियां भी जोरदार और शब्द सिर्फ 2 ही। आइए मैं उम्मीद करती हूँ पहले तो कि आप जल्दी से माइक नहीं छीनेंगे। थैंक यू फॉर दिस। बस ज़्यादा शब्द नहीं, फिर भी जब कोई आए तो एक बोलने का छोटा सा मौका मिलना चाहिए। जी मौका तो मिलेगा, पर मतलब जो समय का ध्यान रखिए। जैसे कि आप जानते हैं, वंदना कौर मैं कथक नृत्यांगना तो हूँ ही और ICSI पैनल आर्टिस्ट के साथ साथ मैंने जब विदेश से हिंदुस्तान लौटी तो मैंने बहुत जानवरों की दशा हिंदुस्तान में खराब देखी। इनफैक्ट वो आज भी है। हमारे बैलों पर, गायों पर किस तरह से लोडिंग की जाती है। हम अपनी लग्जरी लाइफ में भूल जाते हैं कि दुनिया में दर्द पीछे अगर मुड़ के देखें। और हर एक इंसान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर हर एक व्यक्ति एक जानवर को खाना दे तो कोई जानवर भूखा नहीं मरेगा। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। पर हाथ उठा के मुझे देखिए, सब लगभग सबके यहाँ पे उसी चीज को पुनर्जागृत करना है। पुनर्जागृत करेंगे तो आप भी जागृत होंगी और ये समाज भी जागृत होगी। जोरदार तालियां इनके सौंदर्य को देखकर और इनकी काट को देखकर। एक बार जोरदार तालियां तो बनती। बोलेंगे कुछ? वैसे आवश्यकता नहीं है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। Lot of gratitude and thank you to Chavi, and Chavi and Hemant have been parents in my school, so a lot more gratitude to you. Thank you so much. Let me correct you. I'm a car racer and car rally driver. नहीं
ऐसे ना दौड़ने में कार भी दौड़ती है और मोटरसाइकिल भी दौड़ती है। भैया हमें लोग जब खतरा आता है जो हमारी पत्नी हमारे पीछे दौड़ती है। शुभकामनाएं बहुत बहुत। आइए 2 शब्द प्लीज। I want everyone to applaud Vani. She was the first one to come and did not create any fuss, no tantrums, nothing. So we are really grateful for that. I would like to thank all of you for this award, and all I want to say is my car or the roads do not know that I am a lady. All I need to again tell you, believe in yourself, dare to dream. I dared to dream, and that's why I'm here. Thank you. जी बहुत बहुत स्वागत है आपकी। तालियां एक बार आ जाए। आपने इनको 2 दिन पहले सुन लिया था। मैं सिर्फ एक लाइन पंच लाइन आ गई प्लीज। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज कहना चाहती हूँ। Today we've all gathered here, so let us take a pledge that while we're on this planet, we as women and as men bring about a lot of love, peace and harmony. हमारी बेटियां आगे बढ़ें, कुछ करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सबको। शुभकामनाएं बहुत बहुत। रोहिणी वाशने जी आइए। वैष्णवी, मैं सारी बात अपनी बेटियों से बहनों से कहता रहा हूँ। 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका करना चाहती हूँ। आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड to be here with you and being awarded with this. I only want to say one thing. I run an organization by the name RB Learning Foundation, and I'm helping women to become financially independent, and I support the women-owned startups and help them and advise them through the marketing strategy for their organizations and other counseling. Thank you. Sorry, दो शब्द बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ प्लीज प्लीज। Thank you so much for the honor, and quickly I'll just tell that I run a NGO, not even an NGO, a channel which is called Healthy Hope, and that's my tribute to my father who had lost to medical commercialization, and wherein we are just trying to educate people all over India. We are not charging anything, we are just making videos for them to see and educate themselves to do with it. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईमानदारी से बताना, देखो मैं मेरी बहन हूँ, मुझे कहने का पूरा अधिकार है। आपके लिए विशेष जानकारी है, ये मेरी बहन चंडीगढ़ से चलकर यहाँ पर आई है आज का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। ताली तो जोरदार बनती है, पर आपकी थोड़ी सी अच्छी है। ऐसे नहीं, जड़ों से जुड़ो। एक शब्द कह दीजिए। फिर कहेंगे तो एक नहीं, थोड़े से ज्यादा शब्द कहेंगे। देखिए अभी एसीपी मैम ने यहाँ पर एक बात करी थी कि जो है संस्कारों की बहुत समस्या जो है आज के समाज में आ रही है। बिल्कुल ये बात को जानते हुए हमारी संस्था जो है जड़ों से जुड़ो, हम ये प्रयास करते हैं ये लोगों को बताने का कि हिंदुस्तान का जो हमारा जो पुरातन जो हमारी जीवन शैली थी वो कैसे सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है जीवन शैली है ब्रह्मांड में मानवता के लिए। कोरोना ने इसको प्रूफ भी कर दिया कि कितनी साइंटिफिक जीवन शैली हम जी रहे थे, और जैसे जैसे हम उसको छोड़ते चले गए आज हम इस दौर में आ गए हैं कि जहाँ पे खुली हवा में सांस लेने में भी जहर अंदर जा रहा है। तो आप सबसे हमारी यही अपील कि आप जो है अपने संस्कारों से जुड़े रहें, अपनी जो है जड़ों से जुड़े रहें, अपने पुरातन के विचारों से जुड़े रहें, और हमेशा जब भी आप जुड़ेंगे तो एक चीज़ आप महसूस करेंगे कि आपको कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त है या 26 जनवरी है और मैं कहूँ कि आज जो है गर्व से कहूँ मैं भारतीय हूँ। जिस दिन आपने अपने इतिहास, अपने गौरवशाली इतिहास को पहचान लिया, आप हमेशा अपने दिल से और हर रोज़ कहेंगे कि हाँ मैं भारतीय हूँ।
तो यही हमारा प्रयास कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बता सकें। और जो है एक ये मैम गौरी जी, मैं अभी जा रही हूँ सर, 1 मिनट, अभी आपने कहा चंडीगढ़ से आए हैं तो मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लूँगी इस चीज़ के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि आपका जो नाम है इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल नेम। और इसमें आज का सारा इवेंट जो है जो भाग लेता है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है समाज में और ज़्यादा चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। थैंक यू। साक्षी जी कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितनी प्यारी बहन है मेरी, कुछ कहने नहीं चाहती जी। भैया मेरी फोटो नहीं आई ना तो फिर मैं बता दूंगा। शुभकामनाएं बहुत बहुत। अलका सिंह जी आई है, क्योंकि महिलाओं में शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है और इतनी विकट परिस्थितियों में काम करना दिल्ली पुलिस में। अगली मेरी सखी होती है, मेरी पुत्र वधू होती है, रीमा त्यागी उसको कहते हैं, जो कि जहांगीरपुरी में आए, पूरी टीम के साथ आए। नहीं थैंक यू नहीं है, कुछ बोलने के लिए है। अच्छा फोटो भी लेते हैं बोलने के लिए। नहीं 1 मिनट, घर में जाओ तो घर सुनो, बाहर आओ तो घर सुनो। अब श्रीमती जी रात को बीमार हो गई, उनको यहाँ पे आना था, उनका संभाषण था, मैंने खूब कोशिश की, तेल भी लगाया, 2-3 बार चाय पिलाई, तैयार करने की कोशिश की। लास्ट में अगर महिला चाहे नहीं जाना तो कोई ला सकता है क्या, इसलिए वो यहाँ नहीं। प्रियंका जी मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो स्वयं भी महिला का सम्मान करता है, और सब महिलाएं भी मेरा सम्मान करती हैं, क्योंकि कारण सिर्फ यही है कि एक को छोड़कर सारे सब मुझे अपनी बहन बेटियां नजर आती हैं। कुछ बड़ी हैं, वो माता है और माता पूजनीय है। हमारा समाज इस बात को मानता है, यत्र नारी पूजन्ते, बस सामने बैठी रहती, नजरें दिखाती रहती, कुछ का कुछ निकलता। पर जो सिचुएशन मेरी उस वक्त होती, हेमंत जी की इस वक्त है, देखो सामने बैठे हैं। नहीं मुझे पता है ना। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए जन सेवा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पर पार्टी से तो बने रहने की तो मजबूरी है ना जी, उसके बाद कुछ नहीं। तो इसका मतलब अभी आप सिर्फ टिकट लेने के लिए पार्टी के चक्कर लगाएंगे। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां, बीच में एडिटन करता रहूंगा। बाद में होना है, परंतु उनको जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आज तो हम होस्ट हैं ना जी, तो हमारी चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। टीम आइए भैया, एक बार पूरी टीम के साथ नीचे रहे, बेशक से नीचे आइए सब लोग, ऐसे हैं। ये मेरी तमाम बहनें बेटियां समाज में अच्छा काम कर रही हैं, एक उदाहरण है, बहुत लोग सत्ता है। और बबीता से मैं निवेदन करूंगा कि एक लाइन में बात खत्म कर लेना, ज्यादा लंबी नहीं प्लीज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मंच आप लोगों ने दिया है। और बस एक लाइन में यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, यहाँ पे क्या इस देश की हर महिला को वुमेन्स डे का की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ मैं निवेदन करूंगा कि जो मेरी भाई बहनों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एक बार एडजस्ट कर लो भैया, फोटोग्राफर अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। यदि हमारी ये वो टीम है जो प्राकृतिक चिकित्सा को, एक्यूप्रेशर को पूरे देश के अंदर प्रमोट करती है।
छवि दीदी ने मुझे कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास होने चाहिए जो समाज का काम चुप रहकर कर रहे हैं। इन लोगों को आप कहीं भी टीवी पर नहीं देखेंगे, कहीं कुछ नहीं देखेंगे, परंतु इन लोगों का काम बोलता है। तालियां एक बार बोल रहा हूँ। और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है सीए विधानचंद्र अरोड़ा जी, ये आज की अंतिम CSR से आएंगी। सूक्ष्मलता जी के बारे में कवित्री हैं, मैं इनका अनुसरण भी करता हूँ। मैं सिर्फ निवेदन करूँगा दीदी, सिर्फ एक लाइन में बात खत्म करनी है। अच्छा, ट्रॉफी भी नहीं आई क्या अभी? भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बताओ। अभी आने दो, बाद में चेंज कर लेंगे, कोई बात। हाँ, गुरु शिष्य संगठन, गुरु शिष्य संगठन। नहीं, राकेश सर का कोई मतलब ही नहीं है ना, आदमियों का मतलब ही नहीं है, बहनों का मतलब है। हम तो सिर्फ तालियां बजाने के लिए बजाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थोड़ा सा बोलना है, बोलो। सभी को नमस्कार। और एक बहुत ही मीनिंगफुल और सशक्त कार्यक्रम जो है, और सशक्त महिलाओं से मिलने का, उनको सुनने का अवसर यहाँ मिला। सशक्त भाई भी थे, बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हमें भी चैरिटी बिगिंस एट होम, हमें अपने बच्चों से ही शुरू करना है। बेटा है या बेटी है, वी हैव टू नर्चर देम। मैं एक छोटा सा खाली इंसिडेंट आपसे करूँगी शेयर। मेरा स्कूल था न्यू कोंडली में, मैं प्रिंसिपल, 1 मिनट, छोटा 2 लाइन। हाँ, कर दीजिएगा। तो लड़के बहुत तंग करते थे लड़कियों को छुट्टी होने के बाद। मैंने एक पैम्फलेट दिल्ली पुलिस का पढ़ा जिसमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती थी। आई अप्रोच देम, और मैंने वो 2000-2500 बच्चों को एक साथ सेल्फ डिफेंस में ट्रेन कर। मिसेस मल्होत्रा थी और बिमला जी थी ACP उस समय। हाँ जी, थैंक यू। हमें दया नहीं चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग होना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों बराबर है। तो ये बताओ, महाजन जी को लेके क्यों नहीं आए? उनको क्यों बुलाऊंगा? आज तो नाम आपका है, उनका वो तो फोटो खींचने में रहेंगे। थैंक यू विधानचंद्र अरोड़ा जी, CSR और हमारे जो दीनदयाल जी हैं उनके साथ ये सहकर्मिणी हैं, इनके सारे काम को ध्यान देती हैं। और जो जितने भी NGOs काम करते हैं या जितने भी सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का। मनोज जी करे, हो गया ठीक है। A very good evening, everyone. It has been a splendid evening. We all have talked about a lot of things that needed attention. We are taking care of that. That girl who just spoke is my sister. And she just wanted to convey that nobody is bigger. Male, female, we are all equal. And ladies, while you work triple hard to prove your mettle, please understand you also have to rest sometimes. Don't burn yourself out in this entire process. You are great. You are beautiful. You are magnificent creatures. And I am so proud to be a woman. And I am so proud to be standing here with these women who have proved. Either you have a lovely family who supports you, like ma'am is very lucky to have sir, or you have the drive. या तो आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी, आपको अपने सपनों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ना मिले ना, दूसरों के लिए लड़े ना। अगर घर नहीं है तो समझा लो, समझ जाएंगे। आपके सपने आपके अपने हैं, किसी और के नहीं है, एंड ओनली यू कैन कंप्लीट इट।